ठीक है, यू हैव टू थिंक अ लॉट। अब बार बार आपको जब भी आपको कुछ भी स्ट्रक्चर्स आएगी, यू हैव टू विजुअलाइज द स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो जरा ध्यान से समझ के करेंगे चैप्टर। लेट्स बिगिन विद दिस चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेट्स राइट डाउन magnetic effects of electric current. So what you'll be learning in this chapter, basically electric effects के three different effects हमने study किए. First was chemical effect of electric current, that was electrolysis. When current is passed through any substance, it breaks down into constituent elements. ठीक है. सेकंड हमने स्टडी किया था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जूल्स ऑफ हीटिंग स्टडी किया था. सो फ्यूज वाज बेस्ड ऑन इट, टंगस्टन दैट वाज बेस्ड ऑन व्हिच इज यूज्ड इन बल्ब, है ना. हीटिंग एलिमेंट्स हमने स्टडी किया था, दैट वाज ऑल बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. दिस इज द थर्ड, magnetic effect of electric current. When current is passed through any device, it is associated with magnetic field. Magnetic field will be produced around it. ठीक है. So we'll be coming to this topic, but before that, little introduction about what magnetism, magnetic field is there. Just to recall you, because you have studied in class 7th or 8th maybe, magnet. ठीक है, तो एक बार इसको रिवाइज करेंगे quickly. First of all, what is magnet? Magnet is any substance which has the tendency to attract, हाँ जी, pieces of iron, cobalt, nickel towards it. G. Not just hydrogen, it can attract pieces of iron, cobalt, nickel towards it. कहाँ लिखा नाइट्रोजन? निकल? नो, कहाँ बोला मैंने हाइड्रोजन? आयरन, कोबाल्ट, निकल टुवर्ड्स इट. अब मैग्नेट वी नो व्हाट इज. ठीक है, मैग्नेट के बाद एक और हमारे पास एक वर्ड आता है, दैट इज कंपास. व्हाट इज द कंपास? कंपास. It's an instrument that can help us to locate directions like north, east, west, south. वेरी गुड. विच इज इंस्ट्रूमेंट आप करके लिख सकते हैं, बट हम अगर फिजिक्स की टर्म्स में लिखेंगे तो ऐसे इट्स अ स्मॉल मैग्नेट हैविंग पिवोटेड निडल. मतलब निडल विच इज फ्री टू पिवटेड. पिवट मतलब, ठीक है, which is free to rotate, so it always points towards north south direction. ठीक है, वैसे north direction. Fine, let's write down. It's a small magnet having pivoted needle, मतलब which is free to rotate, pivoted, which always points towards north direction या north south direction. north ही लिख लो, उसके ऑपोजिट साइड तो साउथ होती है, बट पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ ही लिखते हैं. ठीक है, so this is compass, right? Then if you have a magnet, then definitely around the magnet there will be field in which its effect can be felt. What do we call this? Excellent, magnetic field. Magnetic field is the space. So when I'm using the word space, it's three-dimensional. ठीक है, it's not two-dimensional. मतलब अगर आपका टेबल के ऊपर मैग्नेट पड़ा हुआ है, तो it's not like the things which are lying on the table only those will be attracted towards it. Even above the table, below the table, ठीक है, in all the directions. So space word use करना, area word नहीं use करना. ठीक है, space around the magnet in which its effect can be felt.
ठीक है, अब ये स्पेस किस टाइप का होगा, व्हाट इज यू कैन से characteristic of this space. Basically, the space contains certain lines which are called magnetic field lines. ये space को random space नहीं है. If you keep any free north pole at a particular direction, it will always point towards a particular direction only. मतलब इस particular जगह के ऊपर magnetic field की एक particular direction है. ठीक है? Okay. So there is a particular pattern in the magnetic field space. Okay, and this pattern is defined by certain lines which are imaginary lines which are not visible to the naked eye. What do we call those lines? Magnetic field lines. The magnetic field is not just any random thing. Basically, it consists of some imaginary lines along which the north pole would move. ठीक है, which has a particular direction. और एक particular जगह पे अगर आप रखोगे तो एक particular direction में ही move करेगी object, not in any random direction. ठीक है, तो यहाँ से एक और चीज पता चलती है, whenever there is any physical quantity, मुझे दिख नहीं रहा पार्थ, आप थोड़ा सा इधर हो जाओ, नहीं हो आदित्य, आप इधर हो जाओ, पार्थ को इधर. So whenever there is any physical quantity which has magnitude as well as direction, what do we call such physical quantity? Very good. The magnetic field lines, these are vector quantities. चलो, नॉर्थ पे, सॉरी नॉर्थ पोल पे जाके तो नॉर्थ को दिखाएगा. विले क्वेश्चन, हाँ बहुत बहुत अच्छा जनरल डाउट. इमेजिनरी लाइन, okay, all right. Imaginary lines in the magnetic field along which a free north pole would move. Why have we written over here a free north pole would move? Because if we consider north and south दोनों को अगर आप consider करते चलते, we know कि magnet is having two directions, two poles, north and south pole. ठीक है, तो अगर हम सिर्फ एक नॉर्थ पोल की बात करें, नॉर्थ पोल किस डायरेक्शन में जाएगा, सो विच इज फिक्सिंग, बिकॉज वी नो कि लाइक पोल्स से रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स से अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है, अगर हम कभी नॉर्थ कभी साउथ इस टाइप से रैंडम ले रहे हैं या फिर इस टाइप का मैग्नेट ले रहे हैं जिसमें वी आर नॉट डिफाइंड कि व्हाट इज द नॉर्थ और द साउथ पोल ओवर हियर. ठीक है, या हमने आयरन निडल रखती, मैंने सोचा कि चलो मैं यहाँ आयरन निडल रख देती हूँ, आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट द पैटर्न, और मैं आयरन निडल रख के एक पैटर्न फाइंड आउट करूँ, आई विल नॉट बी एबल टू फाइंड. सो रीजन क्या है, आयरन निडल इज नॉट मैग्नेटाइज्ड. ठीक है, इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ एज वेल एज साउथ पोल, वो तो बीच में भी अट्रैक्ट हो गया एनी प्लेस, राइट. So it will not be helping us in finding out the actual direction. If we want to find out the actual direction of something, we need to fix one thing. हम नॉर्थ पोल को फिक्स करेंगे, नॉर्थ पोल जहां जहां पे मूव करेगा उस पॉइंट पे हम एक डॉट्स लगाएंगे, विल ज्वाइन द डॉट्स टुगेदर टू क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन. ठीक है, सो हम कभी नॉर्थ कभी साउथ इस टाइप से नहीं, तो नॉर्थ से यहाँ से लेके जस्ट लाइक मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इस तरह से मूव करते हैं, तो फॉर दैट वी हैव टू यूज जस्ट वन पोल, because it will be able to justify, it will be able to find out what is the magnetic field line direction, because this is a vector quantity. So for finding out the vector quantity, हमें एक पोल को फिक्स करना पड़ेगा, इसलिए डेफिनेशन के बीच में हमने वर्ड यूज किया है along which a free north pole would move. But in actual, a free north pole does not exist. We all know one thing, है ना, जहां भी नॉर्थ पोल होगा साथ में साउथ पोल एक्सिस्ट करेगा उसकी बिहाइंड साइड पे, तो रहने दो, इट्स ओके. विल बी यूजिंग अ कंपास नीडल, आई टेल यू हाउ टू डू दिस. ठीक है, हम उसके बाद में आते हैं, पहले डेफिनेशन क्लियर है. ओके, लेट्स राइट डाउन सम कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट, ये पेपर में पूछते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. फर्स्ट वन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले तो भाई इमेजिनरी लाइंस हैं एंड दे मूव इन ओनली वन डायरेक्शन, क्योंकि ये डायरेक्शनल है. दे मूव फ्रॉम, दे ओरिजिनेट फ्रॉम जी,
and move towards south. Originate from north and move towards, merge towards South Pole. You can write that also. South Pole. ठीक है बच्चा? This is the first thing. Second thing, inside the magnet, the direction is from, outside the magnet direction is from north to south. Inside the magnet direction is from south to north. Because only then they'll be able to complete. They will be able to complete one circle. ठीक है? Inside magnet. यहाँ पे लिख लो outside the magnet. अब second point, inside the magnet. They originate from south and move towards north in uniform pattern या फिर parallel lines in form of parallel lines, which is called uniform magnetic field. एक बार डायग्राम ड्रॉ करके दिखाती हूँ, आपको फिर समझ में लगेगा. ओके, एक बार लिखते हैं और साथ में फिर डायग्राम जब करेंगे तो आई विल बी कमिंग टू दिस अगेन वन मोर टाइम. ओनली दिस होप यू हैव रिटन इट. नेक्स्ट, चलो पहले एक डायग्राम दिखाई देते हैं आपको किस टाइप Can की you please show the last screen again? Sure, 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 sure. I'm able to move this to नहीं जाती ना. अभी एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसके बाद I'll come back to this topic again. अभी characteristics complete नहीं हुए, but I think एक बार हम डायग्राम बनाएंगे तो it will be more easy for you to understand this thing what we are studying. ठीक है? So it will be easy for you to relate. Hope you have written, Dakshin. Yes, ma'am. All right. जल्दी से एक डायग्राम बना लो. आप कैसे बनाओगे? कॉपी की 2 lines. ठीक है? The magnet should comprise of 2 lines of notebook. It should be a perfect rectangle. अच्छा खासा बड़ा बनाओ. ओके, एक साइड पे राइट डाउन नॉर्थ, दूसरी साइड पे लिखिए साउथ. अब कॉपी कीजिए 2 लाइन्स है, उसमें 7 पार्ट्स में डिवाइड करो. सी हाउ आई एम डूइंग ऑन द स्क्रीन. 1 2 3 4 5 6 7. जस्ट 7 स्मॉल मार्किंग्स, ज्यादा बड़ी नहीं, बस छोटी छोटी मार्किंग्स. ठीक है? एंड सिमिलर मार्किंग्स ऑन ऑपोजिट साइड नॉर्थ वाले पे. 1 2 3 4 5 6 7. अगर आपके पास काफी स्पेस है, यू कैन ड्रॉ 9 लाइन्स. ठीक है? हम अपनी लाइन्स इन्हीं पॉइंट से ओरिजिनेट करेंगे. सो वी जस्ट गिव अ मार्किंग so that our magnetic field lines do not intersect each other. Okay, because magnetic field lines never intersect each other. But अगर आप random बनाओगे बिना मार्किंग के, तो चांसेस हैं कि आप उनको मिक्स एंड मैच कर दो. ठीक है? क्रॉस ओवर होता है, वहां पे नंबर कटेगा. जहां पे 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी लाइन ज्वाइन करके नंबर कटेगा. ऑलराइट, शैल वी स्टार्ट? इतना डन. अब we'll start from the first from both sides. ठीक है? एक साइड से शुरू करोगे. फर्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द कर्व्ड. उनको आप कर्व की फॉर्म में बनाएंगे. आउटसाइड एंड इनसाइड दे विल बी इन द स्ट्रेट लाइन, जस्ट लाइक मैंने लिखा है सेकंड पॉइंट में. सो फर्स्ट लाइन से फर्स्ट लाइन ज्वाइन करो लाइक दिस. बर्गर के जैसे बनाना जी. फर्स्ट को फर्स्ट से ज्वाइन कर, मेक इट ए क्लोज लूप. अब सेकंड वाले को उस तरफ सेकंड वाले से. So as you're coming towards the pole, bring it closer. यहाँ पे देखो, पोल के पास स्पेस कम छोड़नी है. When it is away from the pole, the space should be more. As they're coming towards the pole, see the spaces, the distance between them is decreasing. They're close at the pole.
As you go away from the pole, they become away from each other. This is the next characteristic we'll be writing. ठीक है, अब नीचे वाली बनाइए. कोशिश करो बिल्कुल जितना ऊपर बनाया है उतनी ही नीचे डिस्टेंस, मतलब ये हाइट जो आप ले रहे हो उतनी लेने की कोशिश करना. ठीक है, ये हाइट आपने जितनी ली थी उतनी देने की कोशिश करेंगे. तो कॉपी की लाइंस को यूज करो. फाइन. नेक्स्ट सेम वे सेकंड साइड से, डोंट लेट द लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर. डन. अब बिल्कुल सेंटर मोस्ट, मेक इट अ स्ट्रेट लाइन. द फिफ्थ लाइन जो सेंटर मोस्ट थी, draw it as a straight line. It's a must. You should not leave this line. This is very important. ठीक है. And then इससे ऊपर वाली, project it towards upper side, but just make it a mark like an arc. Okay. Don't make a complete loop over here. Same way नीचे वाली साइड पे, opposite side same thing. ऊपर वाले को ऊपर जाने दो, जो नीचे वाली लाइन है उसको नीचे की तरफ आने दो. See like this. Everyone clear? So diagram should be neat and clean. इस तरह से बनाओगे देयर विल बी नो इंटरसेक्शंस. अब इसको ध्यान से देखो, जो मैंने लाइन लिखवाई थी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. अब ये बाहर की तरफ तो बेटे हमें जो दिखता था वो था, अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे आर पैरेलल टू ईच अदर, लाइक वी कैन शो इट लाइक दिस. So you should use scale in order to draw straight lines. आप इनसाइड वाली लाइंस नहीं भी ड्रॉ करोगे तो चलेगा, आपको सिर्फ बाहर वाली लाइंस ड्रॉ करनी है. No one will ask you about the inner lines, but अभी एक बार आप अपने लिए ड्रॉ करके रखेंगे so that you know that magnetic field lines do exist inside the magnet also. Like it says it done. अब बनाना है हमें, this is the pattern now. When the pattern is over, what we'll be doing? Arrows. ठीक है. Now we have already written that outside the magnet, magnetic field lines are from north. Right? ठीक है. Oh, अच्छा मेरी स्क्रीन बंद हो गई. तो ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉर्थ, तो जस्ट नॉर्थ के ऊपर जितनी भी है वहां से आउट 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 आउट. ठीक है. And the merge towards south we have written, let it merge towards south, even those lines which are incomplete. ठीक है, उनके ऊपर भी arrow towards south and towards away from north and towards south बनाना है आपने. All right. And inside the magnet, if you can draw, so you can draw, जितने के ऊपर भी बना सकते हो आप, you can draw few arrows which are moving from south to north. पेपर में जब आप बनाएंगे, it's not important to draw the lines inside the magnet, but obviously this is a very important question which could be asked, what is the pattern of magnetic field lines inside the bar magnet? So your answer should be uniform magnetic field because lines are parallel to each other. You could be asked what is the direction inside the magnet. छोटा सा ही फर्क पड़ता है. इनसाइड वर्ड लिख दिया या नहीं लिखा, नहीं लिखा तो नॉर्थ टू साउथ लिखोगे, अगर लिख दिया इनसाइड तो फिर साउथ टू नॉर्थ लिख कर आएंगे. ठीक है. नाउ यू कैन सी द डायग्राम. अब आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आएंगे जो हम इसमें पॉइंट्स लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे. आई मूविंग ऑन टू द वन वी हैव रिटन प्रीवियसली. एक बार उसको दोबारा से पढ़ लेते हैं. वी हैव रिटन दे ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल, मूव टुवर्ड साउथ, आउटसाइड द मैग्नेट, इनसाइड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. ठीक है, इतना लिखा था. अब लेट्स गो ऑन टू द next characteristic. Magnetic field lines never intersect each other. They never intersect each other. Why so? What will happen if the magnetic field lines intersect each other? हमने वहाँ पे बहुत ध्यान रखा है कि पहले से मार्किंग्स की हैं हमने. ठीक है. So we could have done it like this. Can we do something like this? हम ऐसा भी बना सकते थे. If you see NCERT आपको कुछ ऐसा सही डायग्राम मिलेगा. अब वहां पे ऐसा क्यों बना हुआ, हमने क्यों नहीं बनाना? वहां पे इंक मर्ज हुई पड़ी है, डायग्राम वहां पे भी गलत नहीं है,
बट वो ड्रॉ करने के टाइम जो इंक मर्ज हो गई जो प्रिंटिंग में है, दैट इज समथिंग वी आर सीइंग। तो लेकिन उसको देख के गलत इंफॉर्मेशन नहीं लेनी और ऐसे नहीं ड्रॉ करना। नाउ व्हाई दिस इज सो, व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब यहाँ पे देखो ये इंटरसेक्ट हो रही है ना, एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है, एक ही पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ओरिजिनेट हो सकती हैं? व्हाट कुड बी द बेसिस ऑफ दिस क्वेश्चन? ये गिव रीजन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। हाँ जी, एमबी स्टूडेंट्स, यू हैव डन दिस चैप्टर, बोलो। This is just because magnetic field lines are vector quantities, and vector quantities can have only one direction. ठीक है? If I just keep a bar magnet at this position, that is the point of intersection. सोचो मैंने यहाँ पे bar magnet रख दिया, सॉरी कंपास रख दिया, तो कंपास कहाँ पे पॉइंट करेगा? कंपास कैन पॉइंट इन वन डायरेक्शन, कंपास कैन नॉट पॉइंट इन टू डायरेक्शन। हमने डेफिनेशन क्या लिखी थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? नाउ लिसन, हमने डेफिनेशन क्या लिखी थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? These are the imaginary lines along which a free north pole would move. A free north pole would only point towards one direction. Compass cannot point at a particular point towards two different directions. Since compass cannot point, that's why magnetic field lines never intersect each other. क्या रखेंगे इसको? Let's write down. Because at the point of intersection, डायग्राम साथ में बनाओ, ये जो मैंने अभी बनाया है। At the point of intersection, compass cannot point in two different directions as magnetic field lines are vector quantities. ठीक है? We have definite direction. ये मत ही लिखना, कितना ही लिखना, ठीक है? That's enough. अगला करें, फोर्थ। They are crowded at poles and as we go away from poles, they are sparsely present. Yeah, they go away from each other. They are sparsely present, or they go away from each other. The way you want to make your sentence, that's it, easy. ठीक है? Or they are less crowded. Okay, the distance between them increase. जो भी आपको लिखना है. So just look at the diagram you have drawn. है ना? Poles पे क्या है? They are crowded, and as we go away, see the distance between them increases. All right. Next point. The closed loops. वैसे ही point ऊपर आ गया, explain हो गया. बट वहाँ लिखा नहीं था मैंने. It's okay. The closed loops. What do you mean by closed loops? पूरा गोल गोल चलते रहते हैं. Very good. So you see, if you see any one magnetic field line, ठीक है, फर्स्ट वाले ले लो. So पूरा north to south outside and then inside south to north. So it's just like a closed loop. पूरा loop generate होता है उसके बीच में. ठीक है? ऐसे नहीं होता कि सीधी सीधी लाइंस ही हैं या फिर किसी भी शेप की हैं, बस लाइंस हैं, बट ये लूप्स हैं. ओके? तो अगर आपको इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने गए तो फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट ज्वाइन करके लिखेंगे. Why they closed loops? Because outside the magnet they originate from this to that, inside the magnet they originate from, ठीक है, south to north. ठीक है, let's see one more point. Okay, degree of closeness. Degree of closeness shows strength of magnetic field lines. When they're closely packed, मतलब stronger magnetic field. क्या हुआ? ठीक है, तो मतलब कहाँ पे स्ट्रॉन्ग ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड? वेयर इज इट स्ट्रॉन्गर? पोल्स.
ठीक है, since they are more closely packed at poles, the magnetic field lines या फिर magnetic field is stronger at pole. Ma'am, can you show that last slide for just a second? Sure. Everyone यहाँ तक clear है? All of us, let's recall what is the magnet till the time बच्चे जब लिख लिए बता देना please. What is the magnet? Yeah. What is magnetic field? In which effect can be felt. It's just like हमने एक magnet रखा, उसके around मैंने magnet iron fillings को spread कर दिया, sprinkle कर दिया. So there will be space in which it will be attracted. उसके बाद टेबल पे जितनी भी sides पे पड़ी हुई हैं, they are not attracted towards it. तो मतलब वहां पे उसका space खत्म हो गया. ठीक है? So that's the space around the magnet in which its effect can be felt. जहां तक वो attract या repel कर पा रहा है. मैम मैंने लिख लिया. Alright. ठीक है, so this is the pattern of magnetic field line in case of bar magnet. This is very important. Itself diagram could be asked for 3 marks. इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे डायग्राम को, जिस तरह से मैंने बताया फ्लॉलेस है, बस इसको अच्छे से प्रैक्टिस एक बार और करेंगे. एरोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट अच्छे से ड्रॉ करेंगे. ऑलराइट, मूविंग ऑन. सो दिस वाज योर बेसिस. ये तो आपका पुराना रिवाइज किया है हमने, जितना आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है. एक चीज और याद कर लेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बेटा? इट्स अ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और यू कैन से स्ट्रेंथ ऑफ द, जो भी मैग्नेटिक फील्ड है हम किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं. जो स्पेस है उसकी एक स्ट्रेंथ होती है, कौन सा मैग्नेट कितना स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है दैट इज मेजर्ड इन टेस्ला. ठीक है, टेस्ला इज द यूनिट, ऐसे यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज अ फैक्टर क्वांटिटी. ओके, मूविंग ऑन. अब अपने चैप्टर पे आते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. Now there was a scientist who performed one experiment. What was the experiment? Oersted experiment. Sir Christian Oersted. Oersted experiment. Hanji. Not important for me. ठीक है? Move on. Oersted experiment. OERSTED. ठीक है? AD डालो, D डालो, E डालो, वो बाद में देख लेना. That's not important. What is important is Oersted was performing some experiment on electricity, say some circuits. ठीक है? So while performing some experiment on the circuits, he accidentally placed one compass needle close to it. So it was found when the switch was turned on, the compass needle showed deflection. So what was the experiment? एक छोटे से हम circuit diagram बना लेते हैं. ठीक है? So here is a circuit. एक सिंपल से बेसिक सा सर्किट है बेटा, उसके बीच में ये हमारे पास यहाँ पे स्विच है. ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. चलो बनाओ, शाबाश. ठीक है, सो दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड द नेगेटिव टर्मिनल. ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट आप स्टडी कर सकते हो अपनी बुक में से, एनसीईआरटी में से पढ़ेंगे. ओके, दिस इज द फर्स्ट activity, right? So he just accidentally put one compass needle over here. Earlier, the switch was off. There was no deflection in the compass needle. When the switch was turned on, what he observed that there was deflection in the compass needle towards one direction. Any one particular direction. Let's assume any one particular direction. ठीक है? So that was astonishing for him obviously, because यहाँ पे उसने क्या देखा कि मैग्नेट तो कोई पास में है ही नहीं है. तो फिर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आया? कंपास ने डिफ्लेक्शन क्यों शो की? तो कंपास तो तभी डिफ्लेक्शन शो करे, अदरवाइज तो वो अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी. वो किसी और मैग्नेट की तरफ तब डिफ्लेक्ट करेगी जब उसका स्ट्रेंथ ज्यादा है. मतलब अगर मैं अर्थ का तो वीक ही है ना मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं कोई और मैग्नेट उसके क्लोज कर दूंगी तो ऑब्वियसली कंपास विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स that particular magnet which is in my hand.
ठीक है, जिसका स्ट्रॉन्ग होगा उसकी तरफ पॉइंट करेगी. एट वन टाइम देयर कुड बी मेनी मैग्नेटिक फील्ड्स ऑब्वियसली. तो यहाँ पे क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुई. अब उसने क्या किया, उसने अगेन स्विच को ऑफ किया. अगेन ही फाउंड दैट कंपास नीडल वाज in the same direction, that is the main position. Then he did one more change in it. Instead of, हाँ जी, he just changed the direction of flow of current. पहले पॉजिटिव ऊपर था, ठीक है, अब नेगेटिव ऊपर कर दिया. पॉजिटिव इधर, नेगेटिव. अब डायरेक्शन ऑफ करंट इधर है, पहले it was in the opposite direction. What was observed? On reversing the direction of current, direction of deflection of magnetic needle was opposite direction. उल्टी साइड पे होगी जी, बिल्कुल रिपेल हो गई. ठीक है, फाइन. So from here one thing was clear to him, that is whenever there is current passing through any circuit, it is associated with magnetic field. जिस जिस चीज में से भी करंट पास हो रहा है उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है. तो हमारे घरों में कितनी सारा करंट पास हो रहा है. So means in all the wires which are turned on right now, all of them are associated with magnetic field. Even the mobile phones you're carrying, they carry the magnetic field, है ना. हर एक चीज के बीच में जो भी करंट पे चलती है, बैटरी पे चलती है, सेल पे चलती है, इट विल बी एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फील्ड एज वेल. ठीक है, फाइन. सो दिस वाज व्हाट इज सर ओएस्टेड एक्सपेरिमेंट, जहां से उसको पता चला इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. That is production of magnetic field. Very good. When current is passed through a conductor. ठीक है. So this experiment you will be reading from your books. अभी मैं आपको बुक इसमें एनसीईआरटी ओपन नहीं कर पाऊंगी, शेयर किया तो यहाँ पे स्क्रीन मिररिंग बंद हो जाएगी. तो इफ यू हैव योर एनसीईआरटी वहां से एक्टिविटी देख लेना, अदरवाइज जाने के टाइम में एक्टिविटी नंबर्स जो है वो नोट करवा दूंगा. ओके. अब हमें ये तो जो हमने ऑयस्टर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, दिस वाज ऑन अ सिंपल स्ट्रेट फायर. उसके बाद साइंटिस्ट ने स्टडी करना शुरू किया कि व्हाट विल बी द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन केस ऑफ 3 डिफरेंट शेप्स. वैसे बहुत सारे डिफरेंट शेप्स उन्होंने स्टडी की, बट आज सिलेबस वी जस्ट हैव 3 डिफरेंट शेप्स. सो विल बी टेकिंग वायर, एक तो स्ट्रेट वायर, ठीक है, एंड विल बी फाइंडिंग आउट व्हाट इज द direction of magnetic field. In that case, what is the pattern? And in second case, we'll be just turning the same wire in the form of a loop. ठीक है, उसको गोल गोल घुमा देंगे, लूप बना देंगे, सर्कुलर लूप. एंड इन थर्ड केस हम विल बी गिविंग इट लार्ज नंबर ऑफ लूप्स, मतलब स्प्रिंग के जैसे, जिसको हम सोलेनॉइड बोलते हैं. सो विल बी टर्निंग इट इन द फॉर्म ऑफ अ सोलेनॉइड. In all the 3 cases, we have to study the same thing. That is, what is the pattern of magnetic field in this case? What are the factors on which the magnetic field strength depend? So that's something very interesting and very important. All these diagrams, factors, और ये सब theory का part है. Let's start with first of all, straight current carrying conductor. How are you finding this chapter? It's interesting. Yeah. लाइनें हैं मतलब? बोलिए. लूप के बीच में कंपास रखेंगे, बिल्कुल, बताइए. नहीं. it cannot it cannot point in any particular direction. एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करेगा. in no random direction, no, never. वो हम वहां पे भी तो लाइंस बनेंगी ना, मैं आपको बना के दिखा रही हूँ. ऐसे गोल गोल घूमेगा. स्ट्रेट करंट. चलो आप ही की जैसे, देखो किसी साइंटिस्ट ने सोचा होगा, फिर उसने लूप बनाया होगा और फिर वो पैटर्न फाइंड आउट किया होगा. सो यही सोच दे. सोचना बहुत इंपॉर्टेंट बात है. अगर सोचोगे नहीं तो फिर करोगे कैसे? स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. Let's start with the first straight current carrying conductor. मतलब conductor से a wire which is in a straight shape. सीधी wire बिल्कुल लेनी है हमने, and we have to find out what is the pattern, what are the factors on which magnetic field depends. ठीक है, कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम है, what is the direction, everything like that. Let's start with the first one. Similar diagram like we have drawn earlier. But tree draw.
पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। स्विच बना दो कहीं पे भी, ऑन एनी साइड, डजंट मैटर, बट एक लाइन आपने फ्री रखनी है, ठीक है। ये जो साइड है ये लाइन आपने फ्री रखनी है, यहाँ पे कोई डिवाइस नहीं लगाना। यू डोंट नीड एनी एमीटर, वोल्ट मीटर, एनी रेजिस्टर, हम कोई सर्किट डायग्राम नहीं बना रहे। बेसिकली हम स्टडी क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे हमारा कंसंट्रेशन मेन मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न्स पे रहेगा। बट मेक श्योर व्हेन यू ड्राइंग द पैटर्न बिफोर दैट you should draw the direction of current. You should specify what is the direction of current. ठीक है। तो अगर आप में से किसी ने सर्किट उल्टा बनाया है, मतलब बैटरी नेगेटिव इधर और पॉजिटिव इधर बनाई है, हाँ जी, तो जरा उसको उल्टा करके कर लेंगे आप, ठीक है। और यू कैन ड्रॉ टू डायग्राम्स एट द सेम टाइम। स्विच को ऑन करो, करंट पास करेंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव। नाउ डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी लाइक दिस। मैंने उल्टा बना दिया, सॉरी, फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव, ठीक है जी। सो फर्स्ट वाले में करंट इज गोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। लास्ट वाली आर्म की बात करूंगी मैं, जब भी आर्म की बात करूंगी आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस आर्म जहाँ पे मैंने मार्क लगाया है, ठीक है। एंड अगर हम सेकंड वाले केस की बात करें, इन दिस करंट इज मूविंग इन अपर डायरेक्शन। सो दिस इज द फर्स्ट केस, मैं इसको फर्स्ट केस बोलूंगी, ऑनलाइन केस इसको सेकंड बोलूंगी ताकि आपको समझ में लग जाए। ऑलराइट एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। अब उन्होंने क्या किया, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सिंस दीज आर, वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रह गया, कंपास नीडल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट में ड्रॉ करनी थी ना। अब चलो कोई बात नहीं, बाद में करते हैं। मैं याद करवा देना, एक टॉपिक हमने मिस कर दिया। चलो इट्स ओके, फाइन, लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट विल बी डूइंग, हम एक कार्डबोर्ड लेंगे एंड वी जस्ट पियर्स द वायर थ्रू इट लाइक दिस, ठीक है। मैं किस और से देख सकते हैं, मैं देख रही हूँ, ऑनलाइन इट्स Yes, ma'am. ऑलराइट। So just this is the cardboard, ठीक है। एंड आपकी ये वायर है which is current carrying wire, you have to pierce it, ठीक है, so that cardboard आपका बिल्कुल सीधा रहेगा। अब जस्ट लाइक यू हैव दैट स्प्रिंकलर है ना, नमक वगैरह वाली, इसी तरह की आपको स्प्रिंकलर लेनी है, बट दैट विल बी पुटिंग आयरन निडल्स और स्मॉल आयरन, क्या बोलते हैं उसको, डस्ट फिलिंग्स, ठीक है, व्हाटएवर वर्ड यू वांट। तो आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल करोगे ओवर इट। When you sprinkle it over it, they will arrange themselves in a particular pattern, whatever the pattern is for the magnetic field line. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने का सबसे इजी मेथड यही है। फॉर दिस विल बी यूजिंग आयरन डस्ट, ठीक है। आपको अगर बार मैग्नेट पे भी करना है तो दैट्स वेरी सिंपल, बार मैग्नेट लो, उसके, हाँ बिल्कुल जी, उसके ऊपर कार्डबोर्ड रखो, बार मैग्नेट के ऊपर, एंड देन जस्ट स्प्रिंकल द आयरन फिलिंग्स ओवर इट। जो सेम हमने पैटर्न बनाया है उसी टाइप का सेम पैटर्न बन के आएगा, यू कैन सी इट इन योर एंड्स के आजकल। ओके ऑलराइट, सो यहाँ पे आपने ड्रॉ करना है कार्डबोर्ड लाइक दिस, ठीक है। तो सपोज ये कार्डबोर्ड है, जिन्होंने सेकंड नंबर डायग्राम बनाई है ये दोनों बना रहे हैं, यहाँ पे कार्डबोर्ड बनाई है, एंड नाउ आयरन निडल्स वर स्प्रिंकल्ड ओवर इट, ठीक है। व्हाट वाज फाउंड दैट द डायरेक्शन ऑफ आयरन निडल्स, the fillings, how they arranged themselves was concentric circles. बोलिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं आती है पॉइंट के ऊपर। आप ऊपर थोड़ा सा बीच, उसके बीच में कुछ कंडक्टर रख सकते हो उसकी स्ट्रेंथ को कम करने के लिए, ठीक है। आयरन ड्रेस को स्प्रिंकल करोगे तो वैसे नहीं आती है, सही तरीके से आएंगे, करके देखना, ठीक है। There is an activity in your answer. Make sure no magnetic field lines intersect each other. आपको ये नहीं बनाना। You're drawing concentric circles, not spiral. ठीक है, ध्यान रखना, फिर भी कई बार गलती हो जाती है। Fine. Now how we'll be able to find out what is the north pole, south pole over here? वहां पे जो बार मैग्नेट में पैटर्न था और यहाँ पे जो पैटर्न वो quite different है. Obviously the shape is different, so the pattern is different, right? यहाँ पे याद रखेंगे 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द पैटर्न मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन केस ऑफ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर? योर आंसर इज कंसेंट्रिक सर्कल्स,
ठीक है, अब पैटर्न पता चल गया फ्रॉम द आयरन फिलिंग्स. व्हाट विल बी फाइंडिंग आउट? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट. हमें नहीं पता वो किस डायरेक्शन में घूम रही है, whether they're moving clockwise or they're moving anti-clockwise. All I can you see me? All I can you see me? Yes, ma'am. No, you can see me. So for this we have a rule. There are actually several rules over here, but we'll be using the one which is the most famous of all, Maxwell's right hand thumb rule. Okay, what is the name of the rule? Maxwell's right hand thumb rule. All of you hold your pen in your right hand. Okay? हाँ जी. And your thumb should be pointed like this. Your thumb should be pointed like this, जैसे मैंने point किया. Okay? So just imagine you're holding a current carrying conductor or wire in your hand. ठीक है, सोचिए इसमें से करंट पास हो रहा है. So that what is the direction of current? The one which is given by direction of thumb. Upwards. Right now it's upward. If I say current in the downward direction, so you'll be holding your hand like this. ठीक है, करंट को डाउनवर्ड. ठीक है, सो दोनों केसेस बनेंगे. द फर्स्ट केस हमारा जो बोर्ड पे है, दैट इज द डाउनवर्ड, एंड फर्स्ट वाले में करंट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन. नाउ इफ यू सी योर फिंगर्स, दे जस्ट लाइक कंसेंट्रिक सर्कल्स. आपको एक फिंगर को जस्ट एक फिंगर को देखो, इट्स जस्ट लाइक अ सर्कल. द फिंगर इज एनसर्कलिंग द करंट कैरिंग कंडक्टर. कैन यू सी दिस? ठीक है. Now the direction in which the finger encircle give us the direction of magnetic field lines. So if you see what is the direction of magnetic hand. So if the current is in the upward direction, what is the direction in which fingers are encircled? Anti-clockwise. ठीक है, ऐसे ऐसे करते हुए अपनी फिंगर को आगे ले. अब एक याद करने का आसान तरीका, अप एंटी, अप एंटी. What if the current is in the downward direction? Move your hand in the downward direction. Beat करो. ठीक है. Now if you can see finger किधर encircle कर रही है, जहाँ पे फिंगर एंड हो रही है, नेल किस तरफ जा रहा है. ठीक है, वो डायरेक्शन देख लो. तो द डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज. Got it? So with the help of this rule, we'll be able to find out what is the direction of magnetic field lines. ठीक है, अब जल्दी से ड्रॉ करते हैं. द फर्स्ट केस, इसको जरा मैं एक बार सम अप कर देती हूँ. अप एंटी. इफ करंट इज अप, नहीं जी वहां पे हाथ से आप चेक करोगे, तो मैग्नेटिक फील्ड is anti-clockwise, and if the current is down, then clockwise. ठीक है, so just learn it this way also. दोनों तरह से याद करो. You should know how to apply the rule, because this is not just the only case in which you could be asked to apply the rule. और भी कई सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, तो विजुअलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें. ठीक है, जितनी आपकी विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन अच्छी है, ये चैप्टर आपको उतना इजीली समझ में आएगा. जिनकी इमेजिनेशन पावर थोड़ी पुअर है, उनको काम करना पड़ेगा. और लेकिन होप दिस इज क्लियर एवरीवन. ठीक है, सो आप इसको एक और मेथड से फाइंड आउट कर सकते. यू कुड प्लेस अ कंपास नीडल ओवर. अच्छा, यहाँ पे बना ले. फर्स्ट वाले में बेटे डाउन था, तो लेट्स ड्रॉ एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज मतलब, हाँ जी, तो बनाओ जरा. हर एक लाइन के ऊपर एक एरो बना दो. हर एक लाइन के ऊपर एक एरो बना दो. ये बहुत ही स्मॉल बन गया. लेट मी ड्रॉ दिस अगेन. हम थोड़ा सा बड़ा करके बनाते हैं. आप जैसा बन रहा है आप उसको बनाओ. 1 2 3 बनाओ और एंटी क्लॉकवाइज लाइक दिस. सी अभी क्लियर है? अभी डायग्राम क्लियर है? और ठीक है, थोड़ा सा बेटे अगर आपके पास प्रोविजन है तो इसको बड़ा करो कार्डबोर्ड को, बिकॉज दिस इज द मेन पॉइंट जहाँ पे आपको कंसंट्रेट करना है. ड्रॉ कंसेंट्रिक सर्कल्स, और इस केस में क्लॉकवाइज लाइक दिस. दैट्स इट, डन. तो अगर आप यहाँ, जी जी जी, अगर आप यहाँ पे कंपास भी रखेंगे तो कंपास विल पॉइंट इन दिस डायरेक्शन. यहाँ पे अगर आप कंपास रखोगे इट विल पॉइंट इन दिस डायरेक्शन. आप साथ में कंपास भी ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, अप एंटी, डाउन, क्लॉकवाइज. Simple, easy. Let's write down the law now, which we have used. Okay, लिखें. Write down. Maxwell's right-hand thumb rule.
ऑलराइट, देखिए, इमेजिन you are holding a current carrying wire या conductor in your hand so that your thumb points in the direction of current and the direction in which fingers encircle points towards the direction of magnetic field lines. क्या हुआ, क्या हो गया? अच्छा, गुड मॉर्निंग, यहाँ तक क्लियर है? So by now we have studied how to draw magnetic field lines in case of straight current carrying conductor, and we have studied how to draw the direction of magnetic field lines. So what the pattern of magnetic field lines is, यहाँ तक clear है? अब let's see what are the factors on which it depends. What are the factors which decide कि कहाँ पे magnetic field stronger होगा, कहाँ पे weaker होगा, ठीक है? So one thing is simple, one thing is common sense. When you're close to the magnet, the strength is more. When you go away from the magnet, then the strength is, ठीक है? तो मतलब जैसे कंसेंट्रिक सर्कल का रेडियस बढ़ता जाएगा तो स्ट्रेंथ विल बिकम स्मॉलर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ दैट कंसेंट्रिक सर्कल और या डिस्टेंस फ्रॉम द वायर. गॉट इट? दिस विल बी द फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, सिंस यहाँ पे बना कहाँ से है मैग्नेटिक फील्ड, इट हैज बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द करंट. इफ द करंट इज स्ट्रॉन्गर देन द मैग्नेटिक फील्ड विल बी स्ट्रॉन्गर. दो फैक्टर्स हैं, लेट्स क्विकली राइट इट. Factors affecting strength of magnetic field. पढ़ ले. First depends upon magnitude of current, not just current, right? Or magnitude of current. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटे मैग्नेटिक फील्ड को बार बार लिखने की जगह मैं यहाँ पे बी अल्फाबेट यूज करूंगी. बी इज द सिंबल फॉर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है? ऊपर एरो का मतलब इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, करंट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, सो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई. एक ही सेंटेंस में इट्स क्लियर, ठीक है? आप इतना सिंपल से लिख लो बस. जस्ट इन सिंपल टर्म्स, इफ इट इंक्रीजेस, इफ आई इंक्रीजेस, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस. करंट ज्यादा होगा तो स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी. बी बेटा, बी बी बी. आप सिंपली बी लिख लो, ऊपर एरो नहीं डालो, मत डालो. वो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटीज के लिए यू जस्ट पुट अ स्मॉल एरो ओवर द हेड. वो आप हायर क्लासेस में शुरू करेंगे तो वैसे मैं बीच में डाल देती हूँ. बी 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 इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जो पढ़ रहे हो ऊपर हेडिंग देखो. सेकंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर. It is inversely proportional to from the wire, या कंडक्टर वर्ड यूज करेंगे, वायर वर्ड नहीं यूज करेंगे. तो कंडक्टर से जितने दूर जाओगे इट विल डिक्रीज, ठीक है? सो यू कैन राइट डाउन बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी. डी इज द डिस्टेंस, ठीक है? डी लिखो, आर लिखो, आर इज द रेडियस ऑफ द कंसेंट्रिक सर्कल. सो सिंबल डजंट मैटर. You should know what information it is and how to use it in case it comes as a case study, MCQ, assertion, reason, ठीक है? तो उसको यूज करना आना चाहिए इंफॉर्मेशन को. मूविंग ऑन,
Everyone done? Online is it done? Ma'am, just a second. Last point. स्पीड से करो काम, मेरे पास टाइम कम है। वो सिर्फ मोशन में यस में होता है, मोशन चैप्टर में यस। Done, ma'am. Done, ma'am. वो इसलिए देखो 9th क्लास में डेंसिटी डी के लिए आगे थी, इसलिए आपको कंफ्यूजन ना हो तो 9th क्लास के लिए सिर्फ एस कर दिया था, अदरवाइज डिस्टेंस डी ही होगा। आज के बाद डिस्टेंस डी होगा, 9th क्लास में इसलिए आपको कर दिया था। ठीक है, अब लेट्स चेंज द शेप ऑफ मैग्नेटिक दिस current carrying conductor. Let's see what is the pattern now. Magnetic field due to circular loop. ठीक है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ऑब्वियसली लिख लो भाई, करंट कैरिंग, नॉट एनी सर्कुलर लूप, and circular loop which carries current due to current carrying circular loop. Same वही wire, what shape now you have given it? Circular shape. ठीक है, अब a simple सी diagram बना the one which is given here. NCERT is bit complicated and again I said कि जिनकी imagination अच्छी है उनको वो diagram समझ में आ जाएगी। अब पहले ये डायग्राम समझ लो, फिर आपको वो वाली डायग्राम इजी लगने लग जाएगी। ठीक है, एग्जाम में आप सिंपली इजीली ये डायग्राम बना कर आ सकते हो फ्लॉलेसली, आपके कोई नंबर नहीं कटेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, लेट्स डू इट। सी दिस इज आवर वायर एंड वी हैव गिवन इट अ शेप ऑफ सर्कुलर लूप। ठीक है, just one coil at a time, just one loop at a time. We're not giving it multiple loops, we just given it one loop. All right, and just connected the both ends with the battery. Of course this is the current carrying, तो हमें यहाँ पे बैटरी लगानी, तो बैटरी लूप में नहीं लगानी, लूप से थोड़ा बाहर निकाल के वायर को एक्सटेंड करके लगाएंगे। ऑलवेज ट्राई की पॉजिटिव टर्मिनल शुड बी ऑन दिस साइड, नेगेटिव टर्मिनल ऑन द अदर साइड, बिकॉज आप 4 महीने जो 5 महीने आने वाले हैं उसमें जो आप प्रैक्टिस करोगे वो आप एक ही डायरेक्शन में अगर बैटरी रख के प्रैक्टिस करोगे तो इट इज इजी फॉर यू। If you keep on switching it on and off, इधर कभी माइनस उधर कर दी, पॉजिटिव उधर कर दी, तो फिर आपको वो याद नहीं होगा, फिर आपको हर बार रोल लगाना पड़ेगा। अभी आपको एक ही बार में बना के यू कैन इजिली लर्न द रूल एंड यू कैन अप्लाई इट इजिली। एंड वैसे भी हैबिट डालो, एक ही साइड पे हमेशा बैटरी रखा करो, हमेशा स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव से मत स्टार्ट किया करो। ऑलराइट, ऑल दिस से फर्क कुछ नहीं पड़े। नो नीड टू ड्रॉ यहाँ पे द स्विच एंड एवरीथिंग लाइक दैट, हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बना लेना, मैंने कहा चाहिए नहीं हमें यहाँ पे। ठीक है, बनाने में कोई खर्च नहीं है, लगाने को क्या, खत्म करने दो, बाद में बात करेंगे। ठीक है, so you see current is passing now in this arm in the upward direction and in the second arm in the downward direction. If you can imagine, अभी ध्यान दो यहाँ पे, I can just divide this wire in two parts. In first part यहाँ तक current is going in the upward direction and यहाँ से center से current has started going in the downward direction. So we can divide this wire in two parts. The first arm in which it is upward, second downward. Now you know what the case is. You know when the current is moving upward direction, what will be the case in the case? Yeah. All right. So first of all, the question is what is the pattern? So again for the pattern, what you will be doing? Again same thing. है ना? आपको क्या करना होगा? सेम सर्कुलर लूप लिया और सर्कुलर लूप को कहाँ से पास किया? कार्डबोर्ड से। सो कार्डबोर्ड लोगे स्ट्रेट, उसमें से यहाँ से पियर्स किया, ऊपर से पास किया एंड देन नीचे से निकाल दिया। ठीक है, सो दैट योर कार्डबोर्ड इज फ्लैट, ओके, एंड दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस सर्कुलर लूप। समझ में आ रहा है? 90 डिग्री पे बोलिए, वहां कार्डबोर्ड डालो। अब समझिए कि यहाँ से पियर्स करोगे, और एक यहाँ से पियर्स करो ऑपोजिट एंड से, डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड से। तो इस चीज को ध्यान से आपने समझना है। बस जो आपके बेटे एक चीज और याद रखो, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब वायर में करंट, ये वायर है मेरी करंट कैरिंग वायर, इसमें करंट किधर है? इस डायरेक्शन में है ना। ठीक है, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा? उसके 90 डिग्री पे होगा, यहाँ पे। आई कैनॉट डू इट लाइक दिस कि मैंने ये कार्डबोर्ड लिया, उसके ऊपर मैंने रख दिया यहाँ पे करंट कैरिंग वायर एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे मैं स्प्रिंकल करूँ, वो सारी इकट्ठी होंगी जैसे हम बोलते हैं। तो सही पैटर्न के लिए क्या करेंगे आप? 90 डिग्री,
ठीक है, इट हैज टू बी परपेंडिकुलर बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर। ठीक है, कहीं लिखना जरा अपने लिए लिख लेना कि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट ऑलवेज। ऑल्दो तो बस स्पेस है, पर जो हम लाइंस बना रहे हैं, जो पैटर्न हम बना रहे हैं, वो हमारा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बन रहा है। स्पेस तो सब जगह ही है, स्पेस के लिए हम बात नहीं कर रहे, हम लाइंस की बात कर रहे हैं। लेट्स मूव ऑन, अभी क्लियर है? ठीक है, तो आपने स्ट्रेट कार्डबोर्ड लिया, यहाँ से पास किया, ऑपोजिट साइड से कर दिया, नीचे बैटरी से कनेक्ट कर दिया। दैट्स इट, विजुअलाइजेशन पार्ट था। अब नाउ कमिंग टू द पैटर्न। अब मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए अब यहाँ पे आप एक बना सकते हैं, इफ यू वांट यू कैन ड्रॉ वन कार्डबोर्ड ओवर हियर। ठीक है, फाइन। ये कार्डबोर्ड पियर्स करके बनाया हुआ है, तो 3 डायमेंशन में आपको अच्छे से वो दिखाई नहीं देगा, आपको ऐसे लग नहीं रहा होगा, वो ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर रखा हुआ है, तो इसलिए मैंने आपको समझा दिया किस तरह से रखना है। ठीक है, सो इन केस आप चाहो तो उसको ड्रॉ करो, आप नहीं चाहो तो मत ड्रॉ करो। बनाया जब हमने एंड देन स्प्रिंकल्स वर डन, जिन्होंने बना ली इट्स ओके, बनना इट्स ओके, फाइन, डोंट इरेज इट। हाँ जी, तो व्हाट वाज द पैटर्न? कंसेंट्रिक सर्कल्स अलोंग द डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड्स। तो 3 कंसेंट्रिक सर्कल्स अच्छे से खुले खुले बनाने, बिकॉज वी हैव टू ड्रॉ एरोज ऑन इट। ठीक है, as they go away these take the form of loops, and in the center it was a straight line. Just imagine all this is now 3 dimensional. जितनी लाइंस मैंने बनाई हैं ये perpendicular to the direction of current है. You need to have visualization to understand what I am saying. All right, now we can draw arrows. That's quite easy. In first arm I told you, in the first arm the current is moving in the upward direction. हमने लिखा था up anti, तो let's draw anti clockwise. पूरे हाफ तक ले जाओ। ठीक है, ये जो आपको आधी दिख रही है ना, ये कुछ नहीं, ये भी पूरी है बेसिकली, बट हम हाफ क्यों बनाते हैं? बिकॉज उसके बाद उसका स्ट्रेंथ वीक हो गई है। जैसे जैसे लूप्स बड़े होंगे वो वीक हो जाएंगे, एंड दे टेक द फॉर्म ऑफ लाइक सेमी सर्कुलर शेप्स, बट दे डू आर कंप्लीट। हम सिर्फ उसका पार्ट दिखा रहे हैं। सेकंड वाली बेटे, सेकंड वाली आर्म को देखो, जस्ट लाइक दिस आर्म करंट इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पे क्या आएगा? डाउन क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज बना दो, सारी लाइंस के ऊपर बनाना। जाने के टाइम डायग्राम सिखानी है, ऑनलाइन किड्स वीडियो ऑन करके नहीं, ऑनलाइन किड्स व्हाट्सएप पे डायग्राम भेजोगे। एवरीवन ओवर हियर क्लियर? ठीक है, अब सेंटर वाली पे आ जाओ। वी सी दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर वेक्टर क्वांटिटीज। इफ दे आर इन द सेम डायरेक्शन दे विल एड अप। इट्स जस्ट लाइक आप यहाँ पे कुछ चला रहे हो, कुछ भी एनीथिंग, गाड़ी वाड़ी कुछ भी चला रहे हो, है ना? तो फोर्स इज इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। आप इसी के ऊपर और फोर्स लगा, सिर्फ 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है, मैंने 5 न्यूटन की फोर्स और लगा दी, नीचे से धक्का लगा दिया, तो आप एड अप करते ना, दैट्स इट। ठीक है, और डायरेक्शन कौन सी रहेगी? सेम, यही वाली। तो यहाँ पे डायरेक्शन कौन सी आएगी? यहाँ भी अप है, यहाँ भी अप है, तो यहाँ पे अप। समझ आई? और ये स्ट्रेट लाइन क्यों है? बिकॉज इट हैज एडेड अप। इसका इफेक्ट इधर से भी है, ये वाली वायर से भी है, इसका इफेक्ट ये वाली वायर से भी है, so that in the center it become more stronger because it's added up over here. It's strongest in the middle of the circular loop, क्योंकि वहां तो वो ऐड हो गई है, पहली बात। सेकंड बात, ऐड होने के कारण now it's not projected toward any direction, क्योंकि वो equally in the center आ गई है, so it's a equal effect के कारण it has become a straight line. Got it? ठीक है, everyone clear? Moving on, factors. तो हम कंपास को हर जगह पे अपनी डायरेक्शन, हर जगह पे अपनी डायरेक्शन, जैसे कि यहाँ पे रखोगे कंपास इधर जाएगी, यहाँ पे रखोगे तो कंपास इधर जाएगी, बीच में रखोगे तो ऊपर जाएगी। ये ऊपर है, यहीं जाएगी, और कहाँ जाएगी? बेटे कंपास तो आपके हाथ में ही है ना, कंपास को तो हम जैसे भी घुमा सकते हैं। अब ऐसे का कंपास को लिक्विड की थोड़ी है कि ऊपर जाएगी तो वो पता नहीं, वो पिघल के नीचे गिर जाएगी। सॉलिड है भाई, हम उसको 3 डायरेक्शन में जैसे मर्जी घुमा सकते हैं। स्पेस में यूज नहीं करते हम कंपास, क्योंकि यूज इट इन एनी डायरेक्शन, अपवर्ड डाउनवर्ड कहीं पे भी उसको यूज करते हैं, ऑफ कोर्स। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन।
अब ये तुम जो कंपास जब सोचते हो ना, तुम्हारे दिमाग में अर्थ के लिए आता है। जब हम यहाँ बात करें बेटा, बिकॉज दिस मैग्नेट इज क्लोजर टू द कंपास, सो कंपास विल बी एक्टिंग अकॉर्डिंग टू दिस मैग्नेट। तो ऑब्वियस सी बात है ना, अगर नॉर्मली मेरे टेबल पे पड़ी है कंपास तो नॉर्थ साउथ पोजीशन में पॉइंट आउट करेगी, पर अगर मैं पास में एक मैग्नेट रख दूं तो उस मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करेगी। समझ आ रही बात बबल? करेंगे करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, बाकियों को समझ में आ गई। जो मैग्नेट क्लोज होगा कंपास उसकी तरफ प्रोजेक्ट करेगी, बस वही बोला मैंने। फैक्टर्स on the strength of magnetic field depends. That's why the first factor it's common for everywhere. It's current, सबके लिए, कोई भी है भाई, चाहे वो सर्कुलर लूप है, स्ट्रेट है, करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। ठीक है, ये तो कॉमन है, कोई भी शेप हो उसके लिए। सेकंड, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास सर्कुलर लूप है, व्हेन वी हैव अ सर्कल वी हैव अ रेडियस। वहां पे तो हमने लिखा था डिस्टेंस, वो तो डिस्टेंस बढ़ रहा था, अब यहाँ पे रेडियस बढ़ रहा है, तो सेम थिंग विल अप्लाई ओवर हियर, बट इंस्टेड ऑफ डिस्टेंस विल बी यूजिंग द वर्ड रेडियस। द मोर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप। हम सेंटर की बात करें, मैंने क्या बताया, यहाँ पे एड अप हो रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट ओवर हियर, आपने डॉट लगाना। ठीक है, आपने डॉट लगाना, डायग्राम नहीं खराब करना। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट द सेंटर। ठीक है, तो जितना रेडियस स्मॉल होगा, अगर रेडियस स्मॉल होगा तो देखो ये सारी जो चीजें हैं क्लोजर होंगी, ये लूप्स कंसेंट्रिक सर्कल्स विल बी क्लोजर सर्कुलर लूप का। यस यस यस, चलो मैं एक और बना के दिखाते, दिस इज द सेकंड सर्कुलर लूप, दिस इज हैविंग, हाँ जी जी, छोटा सर्कुलर लूप। अब एक सेकंड लेट मी फिनिश दिस। एक एक डायग्राम, क्या हो गया? ठीक है, ऑलराइट एवरीवन, यू सी यहाँ पे सेंटर की बात करें और यहाँ पे सेंटर की बात करें, यहाँ से स्ट्रॉन्ग कहाँ पे है? स्ट्रॉन्ग तो इस पोजीशन पे है ना, दिस इज, है ना, ये जितना इस पॉइंट के क्लोज होगा उतना सेंटर पे क्लोज होगा, उतना सेंटर पे स्ट्रॉन्ग होगा। अब यहाँ पे क्या है, द डिस्टेंस इज लेस, द रेडियस इज लेस, इफ द रेडियस इज लेस इट विल एड अप मोर। ठीक है, बिकॉज इट्स क्लोजर, उतने ही ये जिस लूप्स हैं वो ज्यादा क्लोजली पैक्ड है उसके, तो क्लोजनेस ऑफ लूप्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिखा था ना, क्लोजनेस ऑफ लूप्स वाला पॉइंट। तो जितना स्मॉल रेडियस होगा मतलब लूप्स क्लोज होंगे, लूप्स क्लोज होंगे तो स्ट्रॉन्ग होगा, बस बात समझ में आ गई, शाबाश लिखो। रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप inversely proportional, d is inversely proportional to radius, more is the radius, less is the bit। बताओ बताओ बीच में कैसे, मतलब क्या क्वेश्चन पूछो? ओहो, मैग्नेटिक फील्ड जो हम बात कर रहे हैं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हम सेंटर की बात कर रहे हैं। अब ऐसे तो हर एक जगह पे तो अलग अलग होगा ना, हम हर एक जगह का फैक्टर कैसे बता सकते हैं? हम कहाँ पर बता रहे हैं, हम यहाँ पे बता रहे हैं, एट द सेंटर की बात कर रहे हैं। हमने एक पॉइंट फिक्स किया, हम फैक्टर्स एट द सेंटर का लिख रहे हैं। आप लिख लो अपनी कॉपी में, हम फैक्टर्स किसके लिखेंगे और पेपर में किसका पूछेंगे। इट विल ऑलवेज बी आस्क्ड फॉर द सेंटर, बिकॉज ये तो पॉइंट्स कई सारे, अब यहाँ पे अलग, ये तो अब मैं डायग्राम बनाने लग जाऊं तो इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो इस चक्कर में नहीं पड़ना इतना, वो उसमें नहीं जाना बस। The question will be asked for center of circular loop, that's it, even if it's a higher class or lower class, whatever it is, always remains same. Third is number of loops. Although we have just one loop, we have taken just one loop over here, but in case we have taken number of loops, तो फिर वो n टाइम स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, क्योंकि जितने लूप्स होंगे सब में एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर बता रही हूँ, क्योंकि जितनी आपके पास नंबर ऑफ लूप्स होंगे द करंट विल बी मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस, ठीक है, अब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है हर एक लूप में, इट्स सेम। ठीक है, अपवर्ड साइड पे जा रहा है ना, तो जो अपवर्ड साइड वाला होगा वो सेम वही एंटी क्लॉकवाइज बनाएगा, तो इतने सारे लूप्स में एंटी क्लॉकवाइज एड अप हो जाएगा, एड अप हो जाएगा तो क्या होगा,
ऐड होने से चीज क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है. सो इट बिकम n टाइम्स, n नंबर ऑफ लूप्स n टाइम्स. बोलिए, ये तो वो मैंने बोला अगर करंट जिस साइड पे अपवर्ड जाएगा, जिस साइड पे, ठीक है, वहां पे एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा, ठीक है. दिस इज जस्ट बिकॉज करंट इज मूविंग इन द लूप्स इन द सेम डायरेक्शन. अब देखो, अब समझ में आ रहा है, अब देखो, ठीक है. अप, इसमें डाउन, फिर अप, डाउन, फिर अप, ठीक है. तो जब आप ऐसे लूप को रखते हो, आप रखोगे तो ऐसे ना, समझ आ रही है मेरी बात. अब ये सारे, इस पूरी लूप में करंट इज इन द अपर डायरेक्शन, इस पूरे में करंट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. अब करंट ऐड हो गया ना, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो गया. लेट्स राइट डाउन. या ओके, या राइट. या बस स्प्रिंग आपने ऊपर से देखा, उसको दबा दी, ठीक है जी. बच्चों की अपनी समझने की वो तरीका. गुड गुड गुड. अपने तरीके से समझो जैसे आपको समझ आ रहा है. इसका अब एक सेंटेंस लिख लेते हैं. इट्स इंपॉर्टेंट टू राइट ऑन दिस सेंटेंस. नंबर ऑफ फैक्टर्स में एक बार लिख लेते हैं. ओके, ऑलराइट, लेट्स राइट ऑन व्हाट कुड बी द रीजन व्हाई इट बिकम्स n नंबर ऑफ टाइम्स. इन केस आपको गिव रीजन क्वेश्चन पूछते हैं, तो यू शुड बी राइटिंग दिस आंसर. magnetic field becomes n times when conductor has n number of loops, because current in all the loops is in the same direction. So magnetic field produced by each loop adds up as magnetic field is a vector quantity. All right, is it clear? यहाँ तक is it clear? ठीक है. I think it's the time for you to, yeah, all right. We can meet tomorrow again for continuing this topic, and one more topic is left with me for class of ambient